اس کا 22 باب ہے، اس کی 15 آیتیں پڑھیں گے۔ کی کتاب اس کا 22 باب، اس کی 15 آیتیں پڑھیں گے۔ مل گئے سبھی؟ قرآن کے کلام میں لکھا ہے، اور خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے جو کہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے طریق نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ خدا کے کلام کا بڑا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ میں دعا کریں۔ مہربان بزرگار آسمانی خدا، ہم نے کی گہرائی سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے پاک نام کو مبارک کہتے ہیں خدا۔ خدا اس کو پھر ہمیں اپنے دل میں جمع کیا ہے تاکہ ہم خدا تیرے کلام سے کچھ سیکھ سکیں۔ اے خدا میرے ساتھ بات کر، اپنے بچوں سے بات کرے خدا، اور ہم سب کو خدا اپنے کلام سے برکت دینا خدا، شروع سے آخر تک بڑی رہنمائی فرما خدا یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ آمین۔ بیٹھے سبھی۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کی حصہ کی طرف جائیں جس کو ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ ان دنوں میں مجھے اکثر لوگ پوچھتے رہے ایسٹر کے بارے میں کہ ایسٹر منانے چاہیے نہیں منانے چاہیے، یہ کیا چیز ہے۔ تو جب ہمیں خدا نے یہاں پر کھڑا کیا ہے تو ہم ایک سچائی آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کی بنیاد کلام پر رکھنی ہے اور رکھی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو کلام کے اوپر تعمیر کرنا ہے نہ کہ دنیا کے عقیدوں پر۔ اس سے پہلے کہ میں ایسٹر والی بات کروں، اس سے پہلے ایک اور بات کروں گا، یہ 11ویں حکم میں ہے۔ تو آپ تھوڑا سا صبر کر کے بیٹھے رہیں اور سنتے رہیں کہ خدا یہاں پر کیا فرماتا ہے۔ یہاں پر یہ میسج ہے نبی کا 11واں حکم اور اس کا صفحہ نمبر 28، اور یہاں سے ہم پڑھیں گے، لکھا کہ ٹکوما کی لگاتار دعائیں اور اکثر روزہ کو خدا کی حضوری میں سنا گیا تھا،
وہ اپنے خادم کو بھیج رہا تھا کہ انہیں روح میں تازہ کرے، ان کو بیماریوں سے شفا دے، کلیسیا میں اضافہ ہو، یعنی اس کے بدن میں ترقی ہو جو وہ فقط اپنے خادم کے ہونٹوں کے ذریعہ سے کرتا ہے۔ میں انتہائی پرجوش تھا کہ مسیح کی محبت بھری روح ٹکوما کے ایمانداروں اور دیگر جو دوسرے مختلف شہروں سے اس عظیم عبادت میں شمولیت کے لیے آ رہے تھے کام کرے گی۔ میں ہر روز عبادت میں 1 بجے سے رات 10:30 تک موجود رہتا تھا۔ میں عمارت کے پچھلے حصہ میں کتابوں کے اسٹال پر بیٹھتا، روزانہ 9:30 گھنٹے تک میں وہاں جمع ہونے والے لوگوں سے گفتگو اور رفاقت کرتا اور ان کے سوالوں کے جواب دیتا۔ ان میں سے ایک بھی نا مہربان اور بے انصاف نہیں تھا، ہر کوئی بہت ہی حلیم اور مہربان، شادمان اور مطمئن معلوم ہوتا تھا۔ تمام عبادات ایمان اور روح میں یگانگت کا امتزاج تھی، کوئی بھی اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنے بھائی کے لیے خیال کرتا دکھائی دیتا تھا۔ وہاں پر کسی قسم کے عجیب و غریب کاموں کی ہو ساختہ شہادتیں یا مصنوعی کام نہیں تھے۔ خدا حقیقی طور پر عبادت میں شمولیت کے لیے اتر آیا تھا۔ آج تک میں جتنی بھی عبادت میں گیا ہوں یہ سب سے جداگانہ عبادت تھی۔ روح کے پھل شہادت کے طور پر موجود تھے، اور روح کی نعمتیں جماعت میں کام کر رہی تھی۔ نبوت، بیگانہ زبانیں، زبانوں کا ترجمہ، شفا، موعظے ہو رہے تھے۔ میں عزیز قائرین سے کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ گزشتہ مسلسل 4 سالوں کی عبادات میں اس طرح کے کتنے واقعات سننے کو ملے ہیں۔ میں نے سنا بھی ہے کہ خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں نے مختلف مقامات اور مختلف اوقات میں خدا کا اس قسم کا تجسم دیکھا بھی ہے، لیکن نبوت اور زبانوں کے ترجمہ کی نعمتوں کا حصول اور تقدیس اور تہذیب اور مقدس جلال کے ساتھ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے جب خدا واقع طرح پہ لوگوں کے درمیان آ کر بولے اور اس کی گہرائی، محبت اور تکمیل کس قدر عجیب ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ ایک قابل ذکر نبوت بیان کروں۔ برادر برینہم نے پیغام ہم یسوع کو دیکھیں گے ابھی ختم ہی کیا تھا، یہاں سے اگلی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب پیدر میں کتاب چھپی، بھائی نے کہا کہ اس طرح میں ایسے ہے، یہاں ٹھیک اس طرح لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ برادر برینہم نے پیغام ہم یسوع کو دیکھیں گے ابھی ختم ہی کیا تھا، آج سننے والے گہری خاموشی کی حالت میں تھے، نہ ہی کوئی حرکت کر رہا تھا، نہ ہی کوئی سرگوشی تھی۔ جب خدا بولنے کو ہوتا ہے تو ایک پکیزہ خاموشی چھا جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بھائی برینہم جو دھیمے لہجے میں بول رہے تھے یک چپ ہو گئے۔ تب یکدم دور بالکونی سے ایک آواز سنائی دی۔ خدا کو کسی میکروفون کی ضرورت نہ تھی، اس لیے کہ اس نے ہر کان کو سننے کے لیے کھول دیا تھا، تمام حاضرین کے کانوں اور دلوں میں پہنچانے کے لیے یہ آواز ہوا کے دوش پر سوار ہو کر پہنچی۔ مجھے موقع دیں کہ میں اسے حرف بحرف صحیح طور پر بیان کروں، جو کہ میں نے اسے اپنے ٹیپ ریکارڈ پر ریکارڈ کیا ہوا تھا۔ ہاں، خداوند اپنے لوگوں سے فرماتا ہے۔ اب سنیں یہ آگے، یہ بھائی جو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ جب بھائی نے میسج کہ ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ پیغام ختم ہی کیا، اس کے بعد جماعت میں خاموشی تھی، بھائی برینہم بھی خاموش ہو گئے۔ خدا کو کسی میکروفون کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کیونکہ وہ سننے کے لیے ہر کان کو کھول دیتا ہے، تو یہاں پر اب جب خاموشی ہے، نبی خاموش ہو گئے، جماعت خاموش ہو گئی، تو خدا بولنے کو تھا۔ یہ بات سنیں اور بڑے دھیان سے سنیں کہ سمجھیں آج یہ بات ہمیں خدا کہہ رہا ہے۔
ہاں خداوند اپنے لوگوں سے فرماتا ہے کہ میرا خادم جسے میں نے تمہارے لیے حتیٰ کہ اس نسل کے لیے بھیجا ہے کہ وہ پلوس کی مانند دلیری سے کلام کرے اور ان کو بتائے کہ میں نے اسے اس کے لیے بھیجا ہے. ہاں میں نے اپنے خادم برینم کو بھیجا. خاموشی میں یہ آواز سنائی دے سب کو. اب یہ خدا کی آواز ہے. ہاں میں نے اپنے خادم برینم کو بھیجا ہے. میں نے اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالا ہے. میں نے اپنے بیٹے کو جان دینے کے لیے بھیجا اور میرے لوگوں نے اسے رد کر دیا. اسی طرح میں نے اس زمانہ کے لوگوں کے لیے اپنے بیٹے برینم کو بھیجا جن کے پاس وہ آیا ہے. ہاں وہ وہاں جمع ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنے خفیہ مقامات پر ملاقات کی ہے. میرے لوگوں کے رہنماؤں نے وہاں مشورت کی ہے. انہوں نے اس پر عدالت عائد کر دی. انہوں نے اپنے خفیہ مقام میں کہا ہم اسے رد کر دیں گے. ہم اس میں خامی ڈھونڈیں گے. ہم اس میں کمزوریاں ڈھونڈیں گے اور اپنے لوگوں کو بتائیں گے. ہم انہیں بتائیں گے کہ یہ بھی ایک بات بول ہے. ہاں روح القدس نے اسے نہیں بھیجا. اب یہ لوگوں کے اپنے منصوبے تھے کہ وہ اس نبی کو جس طرح یسوع مسیح کو رد کیا گیا. اب کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے یعنی کہ یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ وہ کفارہ دے. اس کو رد کر دیا گیا. لیکن اس زمانہ کے اندر میں نے اپنے بیٹے برینم کو بھیجا. لیکن لوگ اس کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں, اکٹھے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم اسے رد کر دیں گے اور اس کو بعض بوب کہیں گے. یہ ساری چیزیں جس طرح مسیح کے ساتھ ہوا اسی طرح نبی کے ساتھ بھی ہوا. آگے سنیں, ہم اس میں کامیاب ڈھونڈیں گے. آگے کیا ہے؟ بس میں ایک کی عدالت اپنے خادم برینم کے ذریعے جسے میں نے بھیجا ہے کروں گا. اس لیے کہ میں اپنے روح کو اپنے خادموں پہ ڈالوں گا اور اگر تم نے میرے روح کی تقدیس نہ کی تو تم توڑ ڈالے جاؤ گے. اور اگر یہ تم پر گرے گا, اگر کلام خدا تم پر گرے گا تو تمہیں پیس کا رکھ دے گا اور تمہارے گھر ویران ہو جائیں گے. یہ وہ چٹان ہے کہ اگر تم اس پر گرو گے تو پاش ہو جاؤ گے, لیکن اگر یہ تم پر گرے تو یہ تمہیں چکنا چور کر دے گی. خداوند یوں فرماتا ہے. اب یہ خدا کی بات ہے. آپ کو یاد ہے وہ بہن جس نے کہا تھا اس پیغام کو میری گائے بھی نہ کھائے, اس کا کیا اشر ہوا؟ اس طرح آج بھی کتنے لوگ ہیں جو نبی کی مخالفت کر رہے ہیں ہمارے یہاں علاقہ کے اندر. وہ نبی کو کہہ رہے ہیں وہ گنجے سر والا ہے اور یہ اس چرچ کے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. لیکن یہاں خدا نے کیا فرمایا؟ جس طرح میں نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا لوگوں نے رد کیا, اس زمانہ میں نے اپنے بیٹے برینم کو بھیجا اور اس زمانہ کے جو لوگ ہیں جو رد کر رہے تھے اور ایک کی دعوت بھی اس نے کہا کہ میں برینم کے ذریعے سے کروں گا. اب یہ آواز ہے جب ٹکوما میں بائبل نے میسج دیا اور ہاتھ میں خاموشی چھا گئی, نبی بھی خاموش ہو گئے اور خداوند یوں فرما رہا تھا جیسا آپ سب نے سنا. اب آئے دوسری طرف یہ آواز تھی. اب جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو کوئی اسے رد کرے گا, جو کوئی اس پر گرے گا وہ پاش ہو جائے گا, جس پر یہ گرے گا اسے یہ پیٹ ڈالا جائے گا. اب یہ کلیسیا زمانوں کی بک ہے. اس کے صفحہ نمبر 269 پر غور سے سنیں. پیرا نمبر 206/6. اب اس بات پر غور کریں کہ کانسٹائن نے لوگوں کو خاص عیدیں فراہم کی. میں ایسٹر والی بات کرنے لگا کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں ایسٹر
मनानी चाहिए नहीं मनानी चाहिए, तो वहां हमको जवाब दे दिया। लेकिन अब जिस नबी के बारे में खुदा ने कहा कि एक जमाना की बात मैं उसके जरिए से करूंगा, अब वो नबी की आवाज है। ये इस जमानों के अंदर के नबी क्या कह रहा है। अब गौर से सुने कि कालिस्तान ने लोगों को खास चीजें फराहम की। ये पुरानी बुत परस्तों की देह थी जिनको नए नाम जो कलीसिया से लिए गए थे दे दिए गए। फिर बाद बातों में मसीही कवायद को लेकर बुत परस्तों की रसूमात के साथ आलूदा कर दिया गया। उसने सूर्य देवता की परस्तिश को लिया और उसको सन ऑफ गॉड खुदा के बेटे के साथ बदल डाला और 21 दिसंबर को मनाने की बजाय सूर्य देवता की ईद के तौर पर मनाया करते थे। उन्होंने 25 दिसंबर को मनाना शुरू किया और उसको खुदा के बेटे के जन्मदिन से मसूम कर दिया। जिसको सूर्य देवता के दिन को यीशु मसीह के साथ जोड़ दिया ताकि लोग ये समझे कि यीशु मसीह का दिन है। लेकिन दिन किसका है? सूर्य देवता का। तो सूर्य देवता की ईद मनाने के लिए, उसकी पूजा करवाने के लिए उन्होंने उस दिन को यीशु के साथ जोड़ दिया। ये एक धोखा है, नहीं धोखा? ये एक धोखा बड़ा फरेब है, इसलिए आगे आया है। लेकिन हम जानते हैं जो अप्रैल में पैदा हुआ, जब जिंदगी नमूदार होना शुरू होती है, ना कि दिसंबर में, उन्होंने अस्तरात की ईद को बदलकर ईस्टर के का नाम दे दिया। इस बात को समझे सुने, क्योंकि इसी बात पर सवाल था। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अस्तरात की ईद को बदलकर ईस्टर के नाम से जोड़ दिया, जबकि मसीहियों को खुदावंद की मौत और जी उठने को मनाना चाहिए। असल में ये अस्तरात के लिए बुत परस्तों की एक ईद थी। कौन सी ईद? ईस्टर। ये बुत परस्तों की देवी अस्तरात की ईद थी और उन्होंने इसको कहां जोड़ा? ईस्टर के साथ, यीशु मसीह के उठने के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है। नबी ने कहा कि जितने भी जमाने आए, सबसे ज्यादा धोखा इस जमाने के अंदर है। तो यहाँ क्रिसमस का धोखा, ईस्टर का धोखा। तो देखिए कितनी दुनिया है जो इस धोखे में है। नबी ने बताया कि बाग एदन के अंदर सांप ने आदम की जो बीवी थी उसको धोखा दे दिया और इसके बाद जो यहोवा है बियाबानी कलीसिया में उसको भी धोखा दिया गया। फिर जो कलीसिया पेंटिकोस्ट के दिन जिसका आगाज हुआ 325 में, उसको भी धोखा दिया गया। देखिए वो कलीसियाएं बहुत उन्होंने उनको धोखा दिया गया है, लेकिन इस जमाना की दुल्हन को कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि ये किसी के फ्रेम में नहीं आएगी। क्योंकि इस पर नबी ने भेद खोल दिए। ये जो ईस्टर क्या है, ये 25 दिसंबर क्या है, आप दुल्हन को समझ आ गई, वो उनके वर्गे में नहीं आ सकती। इसलिए जो ईद ईस्टर है ये उसी के साथ जोड़ी है। क्या आपको बात समझ आ गई? अगर नहीं आई तो बताएं, मैं आपको फिर रिपीट कर दूं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि हम आपको किसी धोखे पर तबीर नहीं करना चाहते, क्योंकि हम आपको कलाम पर आपकी तबीर करना चाहते हैं। इसलिए ये ईस्टर है, ये उनकी अस्तरात देवी की ईद है और उन्होंने जोड़ दिया यीशु मसीह के जी उठने के साथ, ताकि जब यीशु मसीह के साथ जोड़ेंगे तो लोग समझेंगे मसीह की ईद है, मनाते जाएंगे। लेकिन नबी ने ये भेद खोल दिए हैं कि ये जो ईस्टर है ये अस्तरात की जो ईद थी उसको इसके साथ जोड़ दिया। 25 दिसंबर के साथ सूर्य देवता के दिन को जोड़ दिया। लेकिन इसलिए जरूरी था कि मैं यहाँ खड़े होकर आपको ये बातें बताता कि ये जो रोमन कैथोलिक के तमाम अकीदे जो है, ठीक है, जो उनकी रस्मातें हैं, ये ईदें हम उनको नहीं मानते। हम मानते हैं सिर्फ बाइबल को मानते हैं, हम पैगाम को मानते हैं। और पैगाम जब खुला तो सारे भेद खुल गए।
और वहां पैगाम के अंदर ये सारी बातें खोल दी गई है कि 25 दिसंबर क्या है और ईस्टर क्या है। इसलिए अब आपको समझ आ गई कि ईस्टर क्या है। ये ईस्टर जो है ये उनकी आसारा देवी की ईद है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यीशु मसीह नबी अप्रैल में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? अप्रैल में पैदा हुए। तो 33 साल कब बनेंगे? अप्रैल में ही बनेंगे। तो इसके बाद 3.5 साल अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आगे अगस्त, यानी कि ये फिर कोई मई, जून, जुलाई के तकरीबन आधा महीना गुजर जाने के बाद कुछ होगा। वहां पर एक चीज को आ सकती है, लेकिन ये यहां नहीं आएगी। एक और बात मेरे साथ पढ़े, रूमियों का खत। ये बात साफ हो गई। रूमियों का खत निकाले, उसका 6 बात। हम पैगाम के बाद में आएंगे, कुछ 6 बातें जरूरी है। उसकी 9वीं 10वीं आयत कोई भाई पढ़ दे। क्योंकि जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। क्योंकि मसीह जब हुआ गुनाह के एतबार से एक बार हुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। आमीन। आपको जैसे सुना है जैसे सुना, इसी तरह तुम बस ठीक है। आप दुनिया के अंदर तंजीमें हर साल से मारती है, हर साल जिंदा करती हैं। ये सुबह खुदा ने मेरे से ये बात डाली, ये जो बात आप हमने पढ़ी है, ये सुबह डाली कि जब के मेरे मोहल्ले के अंदर सुबह ढोल बाज रहे थे, लोग बुलंद आवाज से गा रहे थे, मसीह जी उठा, मसीह जी उठा। मैं उस वक्त खुदा की दूरी में था और ये बात मेरे सामने खुदा डाली, रूमियों 6 बात की नामी है। क्योंकि लोग हर साल से मारते जिंदा करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर मरने का नहीं, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। मसीह जो मुआ कितनी बार मुआ? एक बार मुआ। क्या वो जब मुआ फिर वो जिंदा हुआ तो क्या दोबारा मरा? नो। ये तो हाथानी मारते हैं। तो क्या मुकाशा की किताब का पहला बात 17वीं 18वीं आयत में क्या है? जब यूहन्ना ने उसे देखा, वो मुर्दा से उसके कदमों में गिर पड़ा, उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा खौफ न कर, मैं जो मर गया था मैं जिंदा हुआ हूँ, अब तो बाद में जिंदा रहूंगा। वो फिर नहीं मरने का, हमारा खुदा उसके बाद नहीं मरा, क्योंकि वो खुदा है। वो एक बार मरा जिस्म में, लेकिन उसके बाद वो खुदा के एतबार से जीता है। तो वह उस वक्त मरा था, उसके बाद वो जिंदा हुआ। लेकिन दुनिया के अंदर तंजीमें मिशनें हर साल ही मारती हैं, जलाती हैं, मारती हैं, जलाती हैं। इसलिए वो एक बार हुआ है, उसके बाद वो खुदा के एतबार से जी रहा है। आमीन। इस बात की समझ आ गई अब आएंगे हम कलाम के शीर्षक की तरफ जो हमने पढ़ा है। हमने प्रयास की किताब से एक हवाला पढ़ा है। तो आज के हवाले से जो मजमून है वो है फातिहा सी। क्या है? फातिहा सी। देखिए यहाँ पर और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा इब्राहिम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है क्योंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग न रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों
اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹے کی مالک ہوگی اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی. کیوں؟ کیونکہ تو نے میری بات مانی ہے. کلام میں لکھا ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. یہاں ابراہیم جو ہے اس نے برکت کے لیے کسی کو یہ نہیں کہا کہ میرے لیے دعا کرو پادری صاحب تاکہ خدا مجھے برکت دے. یہاں پر ابراہیم نے خدا کے حکم مانے ہیں, اس کی باتوں کو مانا ہے. جب اس کی باتوں کو مانا تو خدا نے بھی کہا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا کیونکہ تو نے میری بات مانی. نبی نے کہا جب کوئی بھی شخص کوئی بھی گھرانہ خدا کے حکم کی تابعداری کرتا ہے, اس کی باتوں کو مانتا ہے, تو پھر خدا برکت دینے کا پابند ہوتا ہے. تو یہاں وہ دعا کا محتاج نہیں رہا کہ کوئی میرے لیے دعا کرے برکت کے لیے, بلکہ اس نے خدا کی باتوں کو مانا تو خدا نے کہا میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. تو وہ خدا کل آج اب تک یکساں ہے. جب ابراہیم نے بات کو مانا تو خدا نے کہا میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. تو وہ خدا ہمارے لیے بھی ویسا ہی خدا ہے. اگر آپ ابراہیم کی طرح خدا کی باتوں کو مانیں گے, اس کی پیروی کریں گے, تو جس طرح خدا نے اس کو کہا میں تجھے برکت پر برکت دوں گا, تو وہ خدا آج بھی اپنے بچوں کو جو اس کی باتوں کو مانتے ہیں برکت پر برکت دے گا, کیونکہ انہوں نے اس کی بات مانی ہے. ابراہیم کے بارے میں آپ بہت جانتے ہیں کہ ابراہیم ایک بنا ہوا شخص تھا, وہ ایک چنا ہوا شخص تھا اور خدا کو علیحدگی پسند ہے. خدا نہیں چاہتا کہ وہ لوگوں میں رہے. خدا نے آواز دی ابراہیم ان میں سے باہر نکلا, تو ابراہیم ان لوگوں میں سے باہر نکل آیا اور اس سے کہا کہ تو نے اپنے ناطے داروں سے بھی الگ ہونا ہے, اپنے وطن سے بھی الگ ہونا ہے اور تو نے اپنے باپ کے گھر کو بھی چھوڑنا ہے. جو جو خدا کہتا گیا ابراہیم مانتا گیا. یہ خوبی ہے ایک چنے ہوئے شخص کی, اس کے اندر یہ خوبی ہے جو بھی خدا سے کہتا ہے وہ اس کو مانتا ہے. یہ چنا ہوا تھا تو چنے ہوئے کو جو بھی کہا گیا اس نے مانا ہے, لیکن ابھی بھی اس کے ساتھ رشتہ دار تھا. جب تک اس سے علیحدگی نہیں ہوئی خدا نے اپنا وعدہ بھی پورا نہیں کیا. اس کے بعد 100 سال کی عمر میں خدا نے اس کو زندگی میں بیٹے کا وعدہ پورا کیا. پھر اس کے بعد خدا نے کہا کہ اپنے اس بیٹے کو قربان کر. اب ابراہیم نے اس میں بھی کوئی بھی عذر پیش نہیں کیا, کوئی بہانہ نہیں کیا, نافرمانی نہیں کی. دیکھے بارے خدا یسوع نے بھی کہا کہ جو کہ مجھ سے بڑھ کر اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنے شوہر کو اور اپنی جان کو عزیز رکھے وہ میرے لائق نہیں. تو خدا کے لائق بننے کے لیے ان سب سے زیادہ خدا سے محبت کرنی پڑے گی. یہ کہ آسان کام نہیں ہے کہ خدا کو لائق بننا. خدا کے لائق بننے کے لیے ان تمام رشتوں ناطوں سے زیادہ خدا کو پیار کرنا پڑے گا. ابراہیم نے کیا, اور ابراہیم نے جب خدا کی بات سنی کہ اس بیٹے کو قربان کر, ابراہیم نے 2 نوکر لیے, وہ گدھے پر بیٹھے اور موریا پہاڑ پر چلے گئے. وہاں ان کو کہا تم یہاں ٹھہرو, ہم خداوند کے حضوری سے واپس آ جائیں گے. جب راہ میں چلتے تھے تو راہ میں چلتے چلتے کیا ہوا, اسحاق نے اپنے باپ سے کہا, باپ, اس نے کہا بیٹا میں حاضر ہوں. ان کا دیکھ لکڑیاں ہمارے پاس ہیں کیونکہ لکڑیاں اسحاق نے اٹھائی تھی, اور چھری آگ ہمارے پاس ہے, وہ بڑا کہاں ہے. اور ابراہیم نے کہا خدا اپنے لیے آپ مہیا کرے گا. آمین. جب وہاں پر پہنچ گئے تو وہاں ابراہیم نے لکڑیاں جوڑی, اس کے اوپر اسحاق کو لٹا دیا, چھری لی اور بڑا تو ایک آواز آئی, ابراہیم اپنا ہاتھ روک. جب ہاتھ روکا گیا, جس طرف سے آواز آئی تھی وہاں ایک بڑا ہے, مینا ہے جس کے سینگ جھاڑی میں پھنسے ہوئے تھے. تو نبی نے بتایا وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں چیر پھاڑ کرنے والے تھے جانور. وہاں شیر تھا, چیتا تھا, ریچھ. یہ بڑا کہاں سے آ گیا؟
کیونکہ جو ابراہیم نے کہا تھا خدا خود مہیا کرے گا تو خدا نے وہاں پر مہیا کیا. اور کیونکہ ابراہیم کے اندر جو ایمان تھا وہ یہ تھا کہ مجھے اسحاق مردوں میں سے ملا ہے، کیونکہ میں مردہ ہو چکا تھا اور سارا مردہ ہو چکی تھی اور خدا نے مجھے مردوں میں سے دیا ہے. اب خدا نے کہا قربان کر، تو میں قربان کروں گا، کیونکہ خدا مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو یہ آپ نے خدا کا فرمانا. پھر خدا نے یہاں پر کلام کیا. دوسری بات یہاں پر لکھا ہے، پہلے خدا نے کہا ہاتھ روک لے، ہاتھ روک دیا. اس کے بعد تیرہویں آیت میں لکھا ہے ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے. تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوگندی قربانی کے طور پر چڑھایا. اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ رکھا. چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا. اور خدا کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا، کہا کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی ڈریک نہ کیا. خدا کی بات مانی. یہاں پر خدا نے کہا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل دشمن کے پھاٹکوں کی مالک ہوگی. کس کی؟ دشمن کے پھاٹکوں کی مالک ہوگی. اور اس نسل کا ایمان بھی جس طرح ابراہیم کا ایمان تھا، اسی طرح اس کی نسل کا بھی ایمان، وہ ایمان کے صلہ سے دشمن کے پھاٹکوں پر غالب آئے گی. تو میرے پاس وہ بک تو نہیں تھی، لیکن میں نے اس کو استعمال کیا، اس میں مجھے بک مل گئی. اب ہم دیکھیں گے ابراہیم کے فرزندوں کے لیے، اس نسل کے لیے جس کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ تیری نسل جو ہے وہ دشمن کے پھاٹکوں کی کیا ہوگی؟ مالک ہوگی. پھر نبی نے کہا آئیے ابراہیم کے فطری فرزندوں میں سے چند ایک کو ملاحظہ کریں. جب ہم اس کی روحانی نسل ہیں، لیکن آئیے کچھ فطری فرزندوں کو تلاش کریں جن میں سے کچھ نے خدا کے پورے وعدے پر ایمان رکھا اور کبھی اس پر سوال نہ اٹھایا. اب یہ جو فطری فرزند ہیں ان کے بارے میں بات کہ انہوں نے کبھی سوال نہیں اٹھایا تھا، بلکہ وعدے پر ایمان رکھا جو خدا نے کیا تھا. ابراہیم کی نسل اس پر ایمان رکھتی ہے کیونکہ کلام ایسے کہتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اس لیے نہیں کہ کسی نے اس پر تنقید کی یا کسی اور نے ایسے کہا، بلکہ اس لیے کہ خدا نے ایسے کہا ہے جو اسے سچائی بتاتا ہے. خدا ایسے کہتا ہے، اس نے ہر سوال طے ہو جاتا ہے اور آخری کلام ہے. جب خدا کچھ کہتا ہے تو وہ بات طے ہو جاتی ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہر آدمی کا کلام جھوٹا ٹھہرے اور خدا کا کلام سچا ٹھہرے. نبی نے کہا ہم دیکھیں گے اس کے فطری فرزندوں کو. آئے ذرا سوچے، ہم عبرانی فرزندوں کے بارے میں سوچتے ہیں. میں اس وقت ان عبرانی فرزندوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں جب مورت کی پرستش کرنے کی آزمائش ان پر آ پڑی. آپ کو یاد ہوگا کہ بادشاہ نے کہا تھا جو بھی اس مورت کے آگے جھک کر سجدہ نہ کرے اسے آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا. آپ نے یہ بہت دفعہ باتیں سنی ہیں. اب یہ ابراہیم کی نسل ہے، یہ اس کے ایک فرزند ہے، اور اب یہ ایک آزمائش میں ہے. اور آزمائش میں ایک طرف تو آگ تھی، ایک طرف زندگی تھی. اگر کوئی اس مورت کو سجدہ نہ کرے گا تو اس کو کہاں؟ آگ کی بھٹی میں. لیکن جو کوئی سجدہ کرے گا وہ زندہ رہے گا. لیکن یہاں ابراہیم کی اس نسل نے ایمان رکھا. اس نے کہا کہ بادشاہ ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے. ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا ہمیں آگ کی بھٹی میں بچانے کی قدرت رکھتا ہے. اور ان کے لیے ابراہیم کی نسل ہے جن کے اندر ایمان تھا. ابراہیم بھی جس طرح وہ بوڑھا ہوتا جا رہا تھا ایمان میں مضبوط ہو رہا تھا. اب یہ ابراہیم کی نسل ہے
और क्योंकि खुदा ने कहा तेरी नस्ल दुश्मन के फाटकों की मालिक होगी। तो यहाँ ईमान के साथ ही ये जो इब्रानी बच्चे हैं मुल्क के आगे नहीं झुके, वो आग की भट्टी में चले गए, लेकिन जिस खुदा पर इनका ईमान था वो खुदा आसमान से नीचे आया और इनको आग की भट्टी में से बचाया। और ये नस्ल, ये इब्रानी बच्चे, इब्राहिम की नस्ल दुश्मन जो आग थी, आग के फाटक पर काबू हो गए। ये गालिब आई क्योंकि इब्राहिम से जो वादा किया था वो यहाँ वादा में नजर आ रहा है कि उसकी नस्ल दुश्मन के फाटकों पर फतह पा रही है। और अभी ने एक और बात बताई कि जब मूसा को भेजा गया था मिस्र के अंदर, कि वहां में लोगों को निकाल कर ला, जब वो वहां कौम को निकाल कर ला रहा था और वो जब बहरे कुतुब पर पहुंचा, आगे बहरे कुतुब था, दाएं में पहाड़ थे, लेकिन पीछे कौन थी? और मिस्री फौज। अब वो क्या करें? वहां पर बुड़बुड़ाना भी हुआ, लोग मूसा पर बुड़बुड़ा रहे थे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी? तुम्हें मरने के लिए यहाँ पर ले आया। मूसा खुदा की दूरी में फरियाद करता है। खुदा ने कहा फरियाद वो करता है क्या? नबी ने कहा कि खुदा जो है ऊपर बादल में था और उसने बादल में से कुसीदी आंखों से बहरे कुतुब की तरफ देखा। और अकलमंद के लिए इशारा काफी होता है, तो वो बहरे कुतुब समझ गया कि खुदा गुस्से से क्यों देखता है। जैसे उसने देखा तो वो समझ गया, तो उसने क्या किया? उसने रास्ता दे दिया ताकि इस्राएली कौम जो है वो उसमें से गुजर कर पार चली जाए। तो यहाँ इब्राहिम की नस्ल जो मिस्र से निकली थी और वो दुश्मन के फाटक जिनके बहरे कुतुब पर उसने फतह पाई। इब्राहिम, तूने मेरी बात मानी है, तेरी नस्ल दुश्मन के फाटकों की मालिक होगी। इस तरह आगे आकर नबी ने और बात भी कही। उसने कहा कि जो दानियल है ये भी इब्राहिम की नस्ल था। और जब इसको हाथी और शेरों की गाल में डाला गया तो इसने वहां जाना कबूल किया और इसने वहां पर शेरों पर इसने फतह पाई क्योंकि इब्राहिम की नस्ल है। और यहाँ दुश्मन के तमाम फाटकों पर इब्राहिम की जो नस्ल है वो गालिब आ रही है और जो इब्राहिम से कहा गया था वादा वो पूरा होता नजर आ रहा है। आगे यशवा आता है, जब यशवा मूसा की वफात हो गई, वो रहलत कर गया, उसकी कब पर कौन आता है? यशवा आता है। तो यशवा जो है, एक दिन यशवा ने अबूर करना था दरिया को, दरिया यरदन को, तो अप्रैल के महीने में वो दरिया किनारे से ऊपर बहता था, लेकिन खुदा ने रोया दिखाई। रोया में यशवा को बता दिया गया कि जब उन कायरों के पांव जब पानी में पड़ेंगे तो उधर का पानी उधर, उधर का उधर हो जाएगा, दाएं बाएं, और आपके लिए रास्ता बन जाएगा और उसमें से गुजरकर आप चले जाना। तो यशवा जो है इस बात पर ईमान रखा और जब वो कहनों के कदम और पानी में पड़े तो ऊपर वाला पानी ऊपर, नीचे वाला नीचे चला गया और वहां जो यरदन एक दुश्मन था, वो जो फाटक था दुश्मन का, तो इस्राएली कौम और इब्राहिम के फलान दुश्मन पर गालिब आए और ये पार चले। तेरी नस्ल दुश्मन के फाटकों की मालिक होगी। आगे गए, आगे क्या था? आगे यरू की दीवार थी, यरू को फतह करना था, उसकी दीवार, वहां पर घोड़े दौड़ सकते थे और वहां पर ये दीवार को गिरा नहीं सकते थे। लेकिन खुदा ने कहा हर रोज एक चक्कर लगाओ, 6 दिन तक 6 चक्कर, 7 दिन 7 चक्कर लगाकर तुमने नारा लगाना है और दीवारें गिरेंगी। ऐसा ही किया, हर रोज का 1 चक्कर और 6 दिन तक का 6 चक्कर पूरे, लेकिन 7वें दिन पूरे 7 चक्कर लगाए, यरू की दीवारें गिर गई और दुश्मन के फट पर ये गालिब आ गए। आपको पता है हमने एक मैसेज में किसी जगह पर गए, एक भाई कह रहा था कि भाई बिलान जो है ये सिर्फ अमेरिका में रहे, लेकिन अब जो नई बुकियां आ रही है उनमें आप पढ़ रहे हैं भाई बिलान ने दुनिया के 7 चक्कर लगाए।
जिस तरह यशवा ने 7 चक्कर लगाए, हालेलुया। नबी ने 7 चक्कर लगाए, यशवा ने 7 चक्कर लगाए और नारा लगाया और यरीहो की दीवारें गिर गई। नबी ने 7 चक्कर लगाए, मिशनों की दीवारें गिर गई। आगे एक दिन जब यशवा जंग कर रहा था, दुश्मन बिखरा हुआ था, अगर सूरज गुरूब हो जाता, दुश्मन ने इकट्ठे हो जाना था, उसके बाद यशवा के लिए प्रॉब्लम बननी थी। लेकिन यशवा ने क्या कहा? उसने कहा सूरज यहाँ ठहर जा, चांद तू भी ठहर जा। और देखें जमीन की गर्दिश बंद हो गई, सूरज वहां पर ठहर गया, चांद भी ठहर गया, क्योंकि यहां पर यशवा ने दुश्मन पर फतह पानी थी। तो ये इब्राहिम के वो फरजंद हैं जो बहरे कुर्दम पर गालिब आए, जो यतन पर गालिब आए, आग की भट्टी पर गालिब आए, शेरों पर गालिब आए, सूरज को रोक दिया। लेकिन जब इन तमाम सूरमों का मुकाबला या सामना मौत के साथ हुआ, तो मौत के सामने ये ठहर नहीं सके। मौत इनको निकल गई, मौत इन पर फतह पा गई। लेकिन एक दिन फरिश्ता मुकद्दस मरियम के पास आया, उससे कहा कि तेरे बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। उसने कहा ये कैसे होगा, मैं तो मर्द को नहीं जानती। उसका कहा रूह कुदरत की कुदरत से तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। और उसने कहा मेरे साथ तेरे कलाम के मुताबिक हो। उसने कलाम को कबूल कर लिया और इसके बाद एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम यीशु मसीह रखा गया। ठीक है, अब वो जो बेटा पैदा हुआ ये भी इब्राहिम की नस्ल थी। किसकी? इब्राहिम की शाही नस्ल। और बाकी जो नस्ल जो मुतला जगहों पर दुश्मनों पर गालिब आई, लेकिन मौत पर गालिब नहीं आ सकी। ये वो नस्ल है जिसका वादा किया गया था पैदाइश में, मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। अब ये नस्ल आई कैसे? औरत से। औरत ने कलाम को कबूल किया और ये नस्ल आई। और देखिए इसने क्या किया, आदम की गिरी हुई नस्ल के हर एक दुश्मन पर इसने फतह पाई। किसने? मसीह ने आदम की गिरी हुई नस्ल के हर दुश्मन पर इसने फतह पाई है। आप देखें ये मेरे पास बुक है तख्त और फातेह, ये छपी नहीं अभी, लेकिन ये मैंने वहां निकलवाई है। तो यहां पर किस तरह दुश्मन पर गालिब आए। क्या बीमारी तो हमारे दुश्मन है, बदरूह दुश्मन है, तो मुख्तलिफ यहाँ पैरों के अंदर, मैं वहां नहीं जाना चाहता, वक्त ज्यादा हो जाएगा। तो नबी ने कहा एक दिन यीशु मसीह कश्ती में सवार था, शगीद भी सवार थे, और झील में एक तूफान उठा और तूफान अब दुश्मन था। शगीदों ने पूरी कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। अब वो चलाए, यीशु से कहा कि ऐ खुदा हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। तो वो जब सो रहा था वो उठा, उसने कहा ऐ कमित का दो। नबी ने कहा कि उसने कहा क्या तुम्हें याद नहीं कि किस तरह मैंने मुर्दों को जिंदा किया, किस तरह मैंने भूखों को खाना खिलाया, किस तरह बीमारों को शिफा दी। ऐ कमित का दो। वो उठा और उसने अपना हाथ बढ़ाया और तूफान से कहा साकित हो जा। वहां ही तूफान थम गया, आंधी रुक गई। शिगिदों ने कहा ये कैसा आदमी है, हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। तो यहाँ इब्राहिम की जो शाही नस्ल है, इसने हुक्म दिया, तूफान थम गया, पानी ने इसका हुक्म माना। तो यहाँ एक ऐसी नस्ल है जो तूफानों पर फाते हैं, जो और पानी भी जिसका हुक्म मानते हैं। इसके आगे नबी ने एक और बात बताई कि वो बीमारी जो 12 साल की औरत को लगी थी,
12 साल से बीमारी का उस पर कंट्रोल था। बीमारी एक दुश्मन है, लेकिन वो बहन उस पर काबू नहीं पा सकी। कोई डॉक्टर हकीम उसको रिहाई नहीं दे सका। लेकिन एक दिन जब वो इब्राहिम की शाही नस्ल के पास आती है और उसका पेशाब का किनारा छुआ और उसकी कुव्वत निकली और इसमें मुंतकिल हुई और यीशु मसीह ने इस औरत को दुश्मन के कब्जा से आजाद किया, या बीमारी पर उसने फतह पाई। और वो 18 साल की कुबड़ी, जो 18 साल से हैकल में कुबड़ी आती कुबड़ी जाती, वह काहिन था जो हैकल में खिदमत करता था, जो ये कहते थे लोगों को शिफा पाने के लिए सबत को ना आना, किसी और दिन में शिफा पाओ, क्योंकि वो कहते थे सबत का जो दिन है इसे में शिफा तुम नहीं पा सकते। और यीशु ने कहा जब तुम्हारा बैल या भेड़ सबत के दिन कुएं में गिर जाए तुम वहां निकालते नहीं? क्या सबत के दिन उनको पानी नहीं पिलाते? तो ये शिफा क्यों नहीं दे सकते? लेकिन वो औरत जो 18 साल से कुबड़ी आ रही थी, कुबड़ी जा रही थी, उसको कुबड़ा किसने किया? शैतान ने। उसने बदरूहें थी और जैसे ही वो हैकल में उस दिन आई, जब यीशु मसीह भी वहां थे, तो यीशु ने उसको अपने पास बुलाया और यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और वो बहन जो 18 साल से शैतान के कब्जे में थी, तो इब्राहिम की शाही नस्ल ने दुश्मनों पर फतह पाई और उस बहन को आजाद की। और नबी ने एक और बात भी बताई, बहुत सारी बातें हैं लेकिन हम कुछ करेंगे। नबी ने कहा कि वो गरासीन के इलाका में वो आदमी जिसमें लश्कर था, उस वक्त की जो फौजी कुव्वत है, उसने उसको जंजीरों से बांधा, वो जंजीरों को भी तोड़ देता था। अब वो कब्रों में रहता था। आज जो कोई भी कब्र में जाता, वो आदमी उस पर कब्जा कर जाता, उस पर फतह पाता था। लेकिन एक दिन एक छोटे से कद का आदमी और सिमट गया और उस आदमी ने समझा जिसमें लश्कर था कि अब मैं इस पर भी फतह पाऊंगा, और वो भागता यीशु के पास आया। जिस तरह वो भागकर दूसरे के पास जाता था, उन पर गालिब आता था, उसने समझा मैं इस पर भी गालिब आ जाऊंगा। लेकिन जब वो यीशु मसीह की तरफ आया, तो जब जैसे वो आया तो उसका लहजा बदल गया, उसकी कैफियत बदल गई, वो कदमों में गिर गया और कहने लगा ऐ खुदा के बेटे, ऐ खुदा के कदूर, तू वक्त से पहले ही हमें अज़ाब में डालने के लिए आ गया है। तो उसने कहा मुझे इजाजत दे कि मैं सूरों में चली जाऊं। तो यीशु ने कहा चली जाओ। तो वो वहां से निकलकर सूरे में चली गई, वो सारा लश्कर। तो यीशु यहाँ पर भी गालिब आया, उस आदमी को आजाद किया। अब ये सारी तमसीलें हैं, लेकिन ये सब जितने भी लोग मुतल जगह पर दुश्मनों पर फतह पाई इन्होंने, लेकिन मौत के सामने ये कह नहीं सकते। अब मौत इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। कौन? मौत। उन्होंने पहले गुलशन पर फतह पाई, आग की तेजी पर फतह पाई, लेकिन मौत पर वो फतह नहीं पा सके। यह नबी कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मौत था, जिसका सब आदमियों को सामना था। और वो एक दिन कब्री पर गया और वहां सलीब पर उसने एक ही बार सबके लिए सबसे बड़े दुश्मन को फतह किया, जिसका इंसान को सामना था। उसने हम सब के लिए मौत को फतह किया। फिर जब वो मर गया तो उसने इसे खत्म नहीं किया, इसे आप भी ताकतवर फातेह बनना था। चुनांचे बाइबल फरमाती है कि उसने जाकर कहती रूहों में मुनादी की, जिन्होंने हनूक और नूह के पैगाम को रद्द किया था, जिसके बारे में हमने कल रात और बाकी सब के बारे में सदूम में मौजूदा लोगों नबियों को रद्द करने वालों के बारे में बात की थी। उसने उनको देखा, वो ताकतवर फातेह हर नबी के पैगाम का जवाब था, लेकिन वो मौत और जिंदगी के बीच से गुजर चुके थे।
लैदी की लकीर और उनसे कोई उम्मीद ना थी, वो शैतानों और बदरूहों के इलाका में गया। कहां पर? और बदरूहों के इलाका, ये इलाका कहां था? ऊपर नीचे? क्योंकि लिखा है कि वो नीचे के इलाका में उतरा। और ये चढ़ने वाले कौन है जो सबसे ऊपर चढ़ गया? ये चढ़ने वाला ही नीचे गया था। अब वो नीचे क्यों गया? क्योंकि कफारे से पहले ईमानदार और गैर ईमानदार की रूहें नीचे जाती थी, क्योंकि अभी तक सलीब पर कफारा नहीं हुआ था। कोई ईमानदार हो या गैर ईमानदार, वो नीचे ही जाते थे। आप बाइबल से देख सकते हैं कि जब शमूएल मरा था, उस वक्त के बादशाह शाऊल ने जादूगरनी से कहा, मेरे लिए शमूएल को बुला। और जब उसने शमूएल को बुलाया तो शमूएल ऊपर से आ रहा था या नीचे से? वो नीचे से आ रहा था, क्योंकि अभी तक सलीब पर यीशु ने कफारा नहीं दिया था। तमाम लोग नीचे जाते थे, क्योंकि नीचे जो इलाका था वहां दो किस्म की रूहें थी, ईमानदारों की भी और गैर ईमानदारों की भी। लेकिन उस हिस्से को तकसीम किया गया था, एक तरफ ईमानदारों का ग्रुप और एक तरफ गैर ईमानदारों का ग्रुप था। लेकिन इनके दरमियान एक गड़ा था, ना कोई ईमानदारों में से इधर आ सकता था, ना गैर ईमानदारों में से उधर जा सकता था। आप देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह ने यह बात बताई कि एक अमीर आदमी था, एक गरीब था, और जब वो दोनों मर गए तो फरिश्तों ने लाजर को लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। लेकिन जो अमीर था वो कहां चला गया? वो अजाब वाली जगह में चला गया। तो अजाब में जब वो चला गया, उसने दूर से इब्राहिम को देखा और कहा, ऐ बाप इब्राहिम, लाजर को भेज, क्योंकि मैं यहाँ तड़प रहा हूँ। वो अपनी उंगली का सिरा भिगोकर मेरी जुबान को तर करे। इब्राहिम ने क्या कहा? कहा कि अब अगर हम में से कोई उधर आना भी चाहे तो नहीं आ सकता, ना उधर से इधर, क्योंकि तेरे हमारे दरमियान एक गड़ा है, ना कोई इधर से उधर जाएगा ना उधर से इधर, अब नहीं आ सकता। देखिए वहां पर ईमानदार और गैर ईमानदार एक दूसरे को देख भी रहे थे। क्या लिखा नहीं कि अमीर ने इब्राहिम को देखा? ये तब तक था जब तक कफारा नहीं हुआ। लेकिन अब कोई गैर ईमानदार को देख नहीं पाएगा, क्योंकि अब उस वक्त जहन्नम भी नीचे था, फिरदौस भी नीचे था, वहां ही दो हिस्से थे, और ना कोई उधर से उधर जा सकता था, ना उधर से उधर जा सकता था। तो वहां पर जमीन पर ये दोनों ग्रुप रह रहे थे। लेकिन जैसे ही यीशु ने सलीब पर जान दी और इसके बाद वो नीचे के इलाका में उतरा, तो नीचे के इलाका में आदमरवा पर किसका कब्जा था? शैतान का कब्जा था। आदमरवा की कुजिया किसके पास थी? शैतान के पास थी। और जब यीशु नीचे जाता है तो नबी ने बताया इस बुक के अंदर भी, जब नीचे मसीह गया तो आगे का जाकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। तो शैतान यीशु को मारने के बाद बड़ा खुश था। वो अपने इलाके के अंदर कहता, आओ हम खुशी करें, क्योंकि मैंने उसको मार दिया है। जब वो नीचे खुशी मना रहे थे तो अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। शैतान ने कहा बुजुर्ग को, जाकर दरवाजा खोल। जब वो जाकर दरवाजा खोला तो आगे मसीह था। शैतान ने कहा, मैंने तो तुझे उम्र मारा था, तू यहाँ कैसे आ गया? उसने कहा, तूने मेरे इस बदन को मारा था, ये उसकी त्याफरी थी, इसको तू नहीं मार सकता। इसलिए शैतान को उसने कहा, ये चाबियां मुझे दे, क्योंकि मेरा लहू अभी ऊपर गिरा है, मैं इनका कफारा दे आया हूँ। और ईमानदारों की रूहें नीचे इसलिए आती थी क्योंकि पुराने अहदनामा के ईमानदार भेड़ों और बकरों के लहू के नीचे थे। भेड़ों बकरों का लहू जो है वो गुनाहों को मिटाता नहीं था, सिर्फ ढांकता था। इसका मतलब वो सिर्फ ढांकता था तो गुनाह मिटाए नहीं जाते थे, वो गुनाह वहां पर होते थे। इसलिए कोई भी गुनहगार ऊपर नहीं जा सकता था। यही वजह है कि वो भेड़ों बकरों के लहू के नीचे थे, उनके गुनाहों पर पर्दा था और ऊपर से ढांपा जाना था, लेकर मिटाए नहीं जाते थे। इसीलिए वो ऊपर नहीं नीचे जाते थे।
लेकिन मसीह जब नीचे गया तो उसने नीचे जाकर शैतान से कहा ये चाबियां मुझे दे, लेकिन उसने कहा नहीं। लेकिन यीशु ने उसे चाबियां उसके यहाँ लटक रही थी, चाबियां छीनी और उसको इसके बाद किया, उसके लात मारी उसके पीछे फेंक दिया। ये शैतान की कितनी तौहीन है। अभी देखिए शैतान सुन रहा है कि अब यहाँ मेरे बारे में क्या कहा जा रहा है कि हमारा खुदावन जिसने मौत, गुनाह और कब्र पर फतह पाई, जिसने बीमारियों पर फतह पाई, अब उसने यहाँ पर शरीर पर कफारा दिया, उसने नीचे के इलाका में जाकर अपनी से वो कुंजियां छीनी, उसको ऐसी केक लगाई और उसने फिर मुकाशवा पहला बाब 17 आयत में योना से कहा देख मैं जो मर गया था जिंदा हुआ, अब वाकई जिंदा रहूंगा, मौत और आने वाली दुनिया मेरे पास है। लेकिन वहां पर वो तमाम ईमानदार जिन्होंने फतह पाई थी दुश्मन पर, शेरों पर, आग पर, दरियादन पर और बहरे गुलदम पर फतह पाई थी, लेकिन मौत पर वो फतह नहीं पा सके। लेकिन ये इसलिए उतरा, यही एक वाहद है जिसने मौत पर भी फतह पाई। इसलिए तो बाद में क्रूस ने कहा ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा, तेरी फतह कहाँ रही, क्योंकि वो जानता था कि एक है जिसने मौत पर भी फतह पाई है। अब नीचे कितने ग्रुप थे? दो। तो वहां आमद किसकी हुई? मसीह की। खेल के लिए हुई, वहां 2 ग्रुप थे ना, लेकिन मिशनों की बातों का नहीं पता। लिखा पत्रस के पहला पत्रस 3 बाब उसकी 18 आयत में कि उसने कैदी रूह में मुनादी की। मुनादी क्या की? या कुछ बाइबल में जानते हैं, जब नीचे गया तो उसने वो रूहें जो नाफरमान थी उनसे ये बात की, कहा अब ये कौन सा वक्त है? ये मरने के बाद और जीतने से दरमियानी वक्त है। ईस्टर से पहले यानी कि हफ्ते के दिन रात, ये नीचे के इलाके में बातें हैं। शैतान के लोगों को जिन्होंने नाफरमानी की थी, यीशु ने कहा क्या जब नूह मुनादी कर रहा था तो तुमने नूह की सुनी? वो कहते हमने नहीं सुनी, नहीं मानी। तो यीशु ने कहा तुमने उसकी नहीं मानी तो तुमने मेरी नहीं मानी, क्योंकि नूह के अंदर मैं था। तुमने मूसा की नहीं सुनी, तुमने मेरी नहीं सुनी, मूसा के अंदर मैं था। जेल में नबियों ने मुनादी की, तुमने नबियों की नहीं सुनी, तुमने मेरी नहीं सुनी, क्योंकि नबियों के अंदर मैं था। ये नीचे के इलाका की बातें हैं। लेकिन इसके बाद उनको, ये वो लोग थे जो बर्बाद होने वाले थे, जो गुनहगार थे, जो नाफरमान थे, और वो अब बचे नहीं सकते थे। इसके बाद खुदावन उधर गए दूसरे ग्रुप की तरफ। तो जब वहां पर जाकर दस्तक दी तो वहां पर दरवाजा किसने खोला? भाई बताएगा, पता आपको? इब्राहिम ने। देखे इब्राहिम ने दरवाजा खोला। अब ये कौन सा हिस्सा है? ये फिरदौस है। फिरदौस के अंदर ईमानदार है। ईमानदारों जो फिरदौस का दरवाजा है, जो ईमानदार थे, वो दरवाजे को इब्राहिम ने खोला और नबी ने बताया कि आज हमारे जमाने का इब्राहिम भाई बिन इब्राहिम है। और जिसने दरवाजे को खोला ताकि यीशु मसीह फिरदौस में आ सके। अब नीचे कितने ग्रुप थे? 2 ग्रुप थे। तो आपको पता रूहानी जो उसके कैद में है, उसमें भाई इब्राहिम ने एक रोया देखी जिसमें उसको जहन्नम में खुदा लेकर जाता है। तो वहां पर ऐसी रूहें थी और वहां ऐसी औरतें थी जिनकी बिल्ली जैसी आंखें, लंबे नाखून, नेल पॉलिश, आईब्रो मुंडे हुए और बाल कटे हुए, इन सारी औरतों को भाई इब्राहिम ने जहन्नम में देखा था। और आज की औरतें जो लंबे नाखून है, नेल पॉलिश है और होंठों पर सुर्खी है, बाल टूटे हुए हैं और आईब्रो मुने हुए हैं, लेंस लगाए हुए हैं, बिल्ली जैसी आंखें, तो ऐसी तमाम औरतें कहां देखी? जहन्नम के अंदर। तो उनकी आवाजें क्या थी? हु हु हु। तो नबी जब वहां पर गए, उसने कहा खुदावन मुझ पर रहम कर, मुझे यहां से निकाल। तो उसको बाहर निकाला गया
देखो जहन्नम में ऐसी औरतों को देखा था। आप मुकाशवा 9 पढ़े, जहां 5वां नरसिंगा फूंका गया, 6वां नरसिंगा फूंका गया, एक के दरमियान क्या हुआ है कि जहन्नम खुल गया। जो जहन्नम में शैतान थे वो जमीन पर आ गए। जिनको नबी ने जहन्नम में देखा वो फिर जमीन पर देखे गए, क्योंकि जब भाई ब्रैनम एक स्टोर पर गए अपनी बीवी के साथ, वहां पर वो 2 औरतें जिनकी वो आंखें बिल्ली जैसी थी और जो बड़े फैशन और जिस तरह का भाई ने मंजर जहन्नम में देखा था उसी तरह की औरतें सीढ़ियों से आ रही थी और वो यही आवाज़ निकाल रही थी, हु हु हु। अब ये जमीन के नीचे नहीं ऊपर की बात है। नबी ने ऊपर उनको देखा तो नबी ने फौरन पहचाना, इन औरतों को मैंने कहीं देखा है। उसको याद आया ये तो मैंने जहन्नम में देखी थी, तो अब ये ऊपर है। इसका मतलब कि जो 5वें और 6वें नरसिंगे के दरमियान जब जहन्नम खुला तो जो शैतान नीचे थे आप वो जमीन पर आ गए हैं। कहां पर आ गए? जमीन पर। आप वो जिस्मों के अंदर हैं। आप जब जहन्नम खुला जो शैतान जमीन में थे पदार्थ में वो ऊपर आए, वो भी जिस्म के अंदर, लेकिन जमीन पदार्थ भी खुला है, आसमान भी खुला है और एक किताब भी खुली है। और जब किताब खुली तो ऊपर से मसीह आया और आप देखें किताब भी खुली है। किताब कहां से आई? ऊपर से। शैतान कहां से आए? नीचे से। तो जो किताब ऊपर से आई वो ऊपर वालों पर आकर ठहर गई और के अंदर ऊपर की जिंदगी, और जो शैतान नीचे से ऊपर आए और के अंदर शैतान की जिंदगी। अब ये दोनों ग्रुप जमीन पर है। आप समझे कि जहन्नम और फिरदौस दोनों कहां पर है? वो जमीन पर है, क्योंकि जहन्नम खुला है और वो तमाम शैतान ऊपर आ चुके हैं। इसलिए नबी ने जिनको नीचे देखा था आप उनको कहां पर देखा है? उस स्टोर के अंदर। लेकिन वहां 2 ग्रुप थे, वहां मसीह की आमद हुई, लेकिन उन दोनों ग्रुपों में जब वो इब्राहिम की फिरदौस की तरफ जाते हैं तो दरवाजा खुला, तो वहां इब्राहिम ने दरवाजा खोला। इब्राहिम ने देखा, उसने फौरन सारा को बुलाया, सारा इधर आ, देख इस आदमी को, या इसमें लिखा है इस आदमी को देख, ये वही है जो ममरों के बलूतों में आया था। उसने कहा हाँ ये वही है जिसके लिए मैंने फुलके बनाए थे और जिस की पीठ तंबू की तरफ थी और इसने मेरे दिल की बात बता दी थी। ये कौन है? ये वही है। ये अभी नीचे की बातें हैं, लोग ऊपर की बात करेंगे, वो बात करेंगे शरीफ पर उसने क्या बोला, लेकिन जो कोई नीचे हो रहा था उसको कोई नहीं जानता। ये सारी बातें हमारे जमाने के नबी ने बोली है। बातें जानता है, वो नीचे की बातें जानता है। नीचे क्या हुआ है हम नीचे देखें, इब्राहिम ने उसे पहचान लिया क्योंकि इब्राहिम के पास मुकाशफा था, सारा नबी पहचान लिया। इसके बाद देखे सदरक मिसाक ने पहचाना। जब सदरक ने देखा उसने कहा नीचे किधर आओ, अब तो इधर आओ। जी भाई क्या बात है? ये देखो आदमी जब हम आपकी भट्टी में थे तो ये वहां नहीं आया था। वो कहते हाँ ये तो वही है, और जब बात हमें फेंकवा दिया ये हमें बचाने के लिए आया था। अब ये है, अब इसके बाद देखिए वहां दानियल भी था, वहां हिजकिय्याह भी था, वहां अय्यूब भी था। हर एक उसे पहचान रहे थे, लेकिन हर एक के पास अलग अलग मुकाशफा था। इसलिए देखे इब्राहिम ने जो कब्रिस्तान खरीदा था, जहां उसने अपना मुर्दा सारा दफन की थी, उसने क्यों वहां दफन की? वो क्यों खरीदा? अब मैसेज में ये बात मैंने सुनी, बड़ी प्यारी मुझे बरकत मिली, क्योंकि सारा से पहले वहां पर अय्यूब की कब्र थी और अय्यूब के पास मुकाशफा था कि कहा मेरा बदन गल जाए, सड़ जाए, ये रात बन जाए, लेकिन मैं जानता हूं मेरा मौसम देने वाला जिंदा है। एक दिन वो जमीन पर खड़ा होगा और मेरी आंखें उसे देखेंगी। ये मुकाशफा अय्यूब के पास था और ये मुकाशफा अय्यूब से इब्राहिम को मिला। इसलिए इब्राहिम ने वो जगह को खरीद लिया
वहां पर सारा दफन हुई, वहां पर इब्राहिम दफन हुआ, वहां पर इसहाक, याकूब, यूसुफ ने भी कहा जब तुम मिस्र से वहां पर जाओ तो मेरी हड्डियां वहां लेते जाना। इन सब का मुकाशवा था, वो जानते थे कि वहां की कब्रें खुलेंगी। लेकिन जब हम मत्ती 27 बाब की 50वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है और वो बुलंद आवाज से चिल्लाकर उसने जान दे दी, हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट का 2 टुकड़े हो गया, चट्टानें तिड़क गई, कब्रें खुल गई, बहुत सारे मुकद्दीस जो कब्रों में सो रहे थे वो जी उठे, लेकिन भी बाहर नहीं आए। अभी बाहर नहीं आए, कब्रों के अंदर रहे, बाहर कोई नहीं आ सकता था। अगर कोई और बाहर आ जाता तो यीशु मुर्दों में जूठने वाले में परोठा ना हो सकता था। इसलिए कलाम की हर एक बात को पूरा होना था और पर्दा फट गया था, कब्रें खुल गई थी, लेकिन वो जिंदा हुए अंदर ही थे ना। अब इन सब ने उसी के साथ, अब हम कितने खुश हो रहे। इब्राहिम ने कहा ये वही है, सारा ने कहा वही है, दानियल ने कहा वही है, हिजकिय्याह ने कहा वही है, अय्यूब ने कहा ये वही है, सब कह रहे वही है। उनके पास मुकाशवा था, उन्होंने मुकाशवा पहचान दिया। उनके मुकाशवे पर तो हम ताली बजाते हैं, हम हालेलुया करते हैं। क्या हमारे पास उसकी पहचान का मुकाशवा है? जब यीशु ने पतरस से कहा लोग मुझे क्या कहते हैं, लोगों के पास मुकाशवा नहीं था। कोई यूहन्ना कह रहा है, कोई एलिया कह रहा है, कोई नबी में कोई कह रहा है, मुकाशवा नहीं है। कहा तो मुझे क्या कहते हो? पतरस ने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने कहा पतरस ये बात खून और गोश्त ने तुझ पर ज़ाहिर नहीं की, बल्कि ये मुकाशवा तुझे रूह कुदस ने दिया है कि तूने मुझे पहचान लिया। भाई मुकाशवे के बगैर यीशु को कोई पहचान नहीं सकता। या इब्राहिम, इसहाक, याकूब, सदरक, मीशक, अबदनजू, दानियल, हिजकिय्याह, अय्यूब के पास मुकाशवा था। मुकाशवा ने पहचाना ये वही है, ये वही है। तो मुकाशवा था, हमारे पास है। जैसे हम पहचाने वो नीचे के इलाका में उतरा। ये नीचे की बातें हैं, अभी ऊपर वाली नहीं। अब ये सब तो नीचे हो रहा था, लेकिन ईस्टर का टाइम भी हो रहा था। अब टाइम हो रहा था कि वो नीचे से ऊपर भी जाए। अभी नीचे ही है, और नीचे जहन्नम भी था, नीचे फिरदौस भी था। लेकिन मसीह की आमद नीचे हुई और 2 ग्रुपों में वो गया। तो क्या हमारे जमाने का ऐसा नहीं हुआ? आप जहन्नम भी ऊपर है, फिरदौस भी ऊपर है। तो यीशु मसीह जब नीचे गया था, जहन्नम और फिरदौस को विजिट किया, क्या हमारे जमाना में वो नहीं आया? हमें गीत गाया जा रहा था। हमारे जमाना में भी वो 28 फरवरी 1963 को आया है। आज जहन्नम कहाँ पर है? ऊपर। फिरदौस भी कहाँ पर है? ऊपर। तो जहन्नम उनकी अदालत होगी, वो बर्बाद और हलाक होंगे। लेकिन फिरदौस जो है उसमें यीशु मसीह नीचे से ऊपर लाया नहीं लाया? आप देखें यहाँ पर दोनों ग्रुपों के पास हो गया। एक तो बर्बाद होने वाला था, लेकिन एक ऊपर आ जाने वाला था। यीशु मसीह ने कहा मैं किसी को मुजरिम ठहराने नहीं आया, एक है जो तुम्हें मुजरिम ठहराएगा, वो गुलाम जो मैंने तुमसे किया। आप दुनिया के अंदर भी ऐसा ही है, हमारे जमाने के अंदर भी मसीह आया है एक पैगाम के साथ, उसने नबी को भेजा है, और वो इसलिए कि लोग निजात पाए। अभी वो गीत गा रहे हैं, ठीक है, मसीह जी मेरा दुनिया में आया, दुनिया में आया, एक पुस्तक को लाया, एक किताब लाया है, किताब को खोला है, ये दुनिया के अंदर आया है। अब वो नीचे चल रही है। और जब वहां बातचीत चल रही थी, अब टाइम पूरा हो रहा था। यीशु ने कहा तुम भेड़ों और बकरों के लहू के नीचे रहे, और मैं ऊपर लहू बहा चुका हूं, कफारा दे चुका हूं, अब गुनाह मिट चुके हैं। अब आओ ऊपर चले। कहां पर चले? नीचे थे। आप मसीह कहता आओ ऊपर चले। इब्राहिम कहता है खुदावन याद करें, कहा मैंने तुझे एक बात कही थी, मैंने एक दरखास्त की, रिक्वेस्ट की थी
जब तूने कहा सदोम अमोरा को मैं जलाने वाला हूं, तो मैंने कहा था खुदावन अगर वो 50 ईमानदार हुए तो तू जला देगा। तूने कहा था मैं छोड़ दूंगा। फिर मैं 45, 40, 30, 20, 10 तक आ गया। मैंने तब भी रिक्वेस्ट की थी, आप एक रिक्वेस्ट और है। ये जो सारा है ना, सारा मुझे कह रही है जब ऊपर जाएंगे तो वहां मैंने घूमना है, मैंने वो हैकल देखनी है। तो खुदा ने कहा ठीक है, मैं 40 दिन शहीदों के साथ रहूंगा और तुमने जहां मर्जी घूमो, जहां मर्जी घूमो। इसके बाद नीचे थे, फिर ईस्टर का टाइम हो गया, वो नीचे से ऊपर आ गए। लेकिन किन बदनों में वो ऐसे बदन थे, वो ज़ाहिर भी हो जाते थे, वो गायब भी हो जाते थे। ये बदन उनको मिले। हम जानते हैं हमारा खैमा का घर जो जमीन पर है, दूसरी जगह में एक और अमात में जो हाथ का बना हुआ घर बल्कि अवधि है, तो यार इनको थे वो बदन मिले, ये ऊपर आ गए। अब 40 दिन तक वो जमीन पर है। लिखा काम में कि वो यरूशलेम में गए, मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। वो अकेला जिंदा नहीं हुआ, वो तमाम मुकद्दसीन जो पुराने अहदनामा के थे और सब की कब्रें खुली। जब वो ऊपर आया तो वो सभी ऊपर आए, सब ऊपर आ गए। आज 40 दिन तक वो जमीन पर फिरते रहे। सारा इब्राहिम हैकल में गए और यीशु अगोदा के लूका 24 बाब के अंदर हम उसकी राह पर रोश कर थे, वो जा रहे हैं, आज से बातें कर रहे हैं आपसे। क्या वो इतना कुदरत वाला नबी? उस पर इल्जाम लगाया गया, उसके बाद बारे में गुफ्तगू हो रही थी। आप जब वो गुफ्तगू करते जा रहे थे और उनके बीच में वो आ गया, तो क्या वो नीचे से ऊपर आया और कहता है तुम ये क्या बातें कर रहे हो? कहते कि तुझे नहीं मालूम एक दिन में क्या हुआ है? क्या हुआ है? वो नबी यीशु जो इतना कुदरत वाला था और जिसने ऐसे ऐसे काम किए, उस पर इल्जाम लगाया गया, उसको मसरूफ किया गया, उसको दफन किया गया। हमारी बहनें वहां पर गई तो आगे उसकी कब्र खाली थी। इसके बाद यीशु ने कहा ऐ नबियों की बातों को मानने में क्या जरूर ना था जो कुछ तौरात ने उसके बारे में कहा, सेफ ने उसके बारे में कहा, वो पूरा होता। तो यहाँ वो 7 मील का सफर था, तो 7 मील तक वो क्या बोलता रहा अमाउस से यरूशलेम 7 मील का सफर था। तो ये 7 मील किसको दान करता है? ये 7 मील से जमानों को दान करता है। लेकिन 7वें पर हुआ क्या? जब वो अंदर गए और वो देख रहे थे कि हमें कलाम सुना रहा है, भेद खोल रहा है, हमें बरकत मिल रही है, हमारे दिल जोर से मार रहे हैं। अब वो थोड़े से लंबे लंबे कदम चलना शुरू हुआ, उन्हें ढंग से अप्रूव किया, हमसे आगे जाना चाहते हैं। लेकिन कहा ऐ भाई हमारे साथ चल, अब शाम हुआ जाती है, शाम को हमारे साथ, शाम के वक्त रोशनी होगी। शाम का वक्त, वो शाम के वक्त उनके साथ था। जब वो कमरे में गए, उसने वहां पर रोटी पर बरकत चाही, रोटी को तोड़ा तो उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने शाम के वक्त यीशु मसीह को पहचान लिया। क्या हमारे जमाना शाम के वक्त आया? आज भी जिनकी आंखें खुली हैं, शाम के वक्त यीशु मसीह की आमद हुई और यीशु मसीह को पहचान लिया, क्योंकि मोहरें खुल चुकी हैं। इसलिए वो अमाउस की राह पर जाने वाले लोगों ने उसको पहचाना। अब 40 रोज के बाद, जब 40 दिन हो गए, इसके बाद यीशु ने शिष्यों को पहाड़ पर बुलाया। वहां पर आए तो वहां उनके देखते देखते वो ऊपर चला गया। अब यहां से मैं पढ़ूंगा कि वो कहां गए। सुनिए,
ٹھیک ہے, اس نے جگہ جگہ سے جہنم کے دھندوں کو کاٹ دیا, یہاں تک کہ اس نے آسمان میں ایک سوراخ کر دیا جس کے ذریعے آدم کی گری نسل کی فتح, اس نے کیا ہوا کو فتح کر لیا, اس نے گناہ کو فتح کر لیا, اس نے موت کو فتح کر لیا, اس نے جہنم کو فتح کر لیا, اور فاتحانہ طور پر وہ جی اٹھا. اور پرانے عہد نامہ کے مقدسین اس کے ساتھ ستاروں سے آگے چلے گئے, اس کے ساتھ کیسا شاندار فاتحانہ آگے بڑھنا تھا جو کہ ایک حقیقی فتح کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد جب اس شاندار شہر تک آتے ہیں تو ابراہیم سارا سے کہتا ہے یہاں آؤ پیاری, اور اسحاق کو اپنے ساتھ لے آتی ہے. اسحاق یعقوب یوسف کو لے کر آتا ہے, اور اس نے کہا یہ وہ شہر ہے جو باپ نے دیکھا, جس کا معمار بنانے والا خدا ہے. آپ نے سنا ہے, پڑھا بھی بائبل سے کہ ابراہیم وہ شہر کا متلاشی تھا, وہ تمبو میں رہتا تھا, وہ چاہتا زمین پر محل بنا سکتا تھا, لیکن وہ خیموں میں رہا کیونکہ وہ ایک ایسے شہر کا متلاشی تھا جس کا بنانے والا خدا تھا. وہ شہر کہاں؟ وہ شہر اوپر ہے. یسوع مسیح نے بھی کہا میں جاتا ہوں تمہاری جگہ کیا کروں, میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو تمہیں کہہ دیتا. اب ابراہیم وہ شہر کا متلاشی تھا, لیکن وہ اس کو تلاش کرتا کرتا وہ بھی مر گیا, سارا مر گئی, وہ سب زمین پر چلے گئے. لیکن اب زندہ ہوئے 40 روز کے بعد جب اوپر جا رہے ہیں, اب وہ شہر جب آیا تو ابراہیم نے سارا کو بلایا, سارا نے اسحاق کو, اسحاق نے یعقوب کو, یعقوب نے یوسف کو, اور کہا دیکھیں یہ وہ شہر ہے جس کی ابراہیم تلاش کر رہا تھا. زمین سے ہم اوپر جاتے ہیں, اب دیکھیں آگے کیا ہوا. جس کا معمار بنانے والا خدا تھا, اور اب میں دروازوں کے قریب آ رہا ہوں. اگر وہ عظیم آدمی تھے لیکن وہ اسے فتح نہ کر سکے, اور اس کو فتح کرنے کے لیے نیچے آنا پڑا خداوند کو. اگر ابراہیم نے, اسحاق نے, یوسف نے مشکلات پر فتح پائی, لیکن گناہ پر فتح پانے والا صرف ایک ہی تھا, اور وہ وہی خدا یسوع تھا. جب انہوں نے شہر کے اندر والی روشنی دیکھی اور بڑے بڑے چمکتے ہوئے دروازے دیکھے, یسوع کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا, اور فرشتے اوپر عمارتوں کی چوٹیوں پر وہ چڑھنا شروع ہوئے اور آنے والوں کو دیکھ رہے تھے. تو پرانے عہد نامہ کے مقدسین کہتے ہیں, چلا کر کہتے ہیں اے پھاٹکو سر بلند کرو, اے اپنی دروازوں اونچے ہو جاؤ, جلال کا بادشاہ داخل ہوگا. آگے سنیں, یہ نیچے آواز ہے کن کی؟ ایمانداروں کی. کہتے ہیں دروازوں اونچے ہو جاؤ, سر بلند کرو, جلال کا بادشاہ داخل ہونے والا ہے. آگے اوپر جو فرشتے تھے جو اوپر سے جھانک رہے تھے, فرشتے کہتے ہیں, لکھے فرشتے نے چلا کر کہا, جب انہوں نے کہا کہ جلال کا بادشاہ داخل ہوگا, فرشتے کہتے ہیں یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ یہ انہوں نے کہا. آگے پھر ایماندار کہتے ہیں, پرانے عہد نامہ کے مقدسین چلا کر کہا خداوند جو جنگ میں زوراور ہے. دروازے کھل جاتے ہیں, اور سے دروازہ پر پرانی کھڑتی سلیب رکھ دی. ہر مرد ہر عورت جو کبھی دروازے پر آئے گا اور اسے سلیب کے سامنے جھکنا پڑے گا, اور اسے طاقتور فاتح کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور فرشتے 10,000 بار, ہزار بار چیخے چلائے, خدا کی تعریف کی. عظیم طاقتور جنگجو کے طور پر اس نے اسیروں کو آزاد کیا, آدمیوں کے انعام دیے. فرشتوں نے صبح کے سارے کی تعریف کی. جب وہ سڑک پر طاقتور فاتح کے طور پر آگے بڑھا, جس نے دنیا کے گناہ فتح کیے تھے, لوگوں کو فاتحانہ طور پر وہ آگے لایا. وہ شہر میں چلے گئے, یہاں تک کہ وہ تر تک آ گئے
ताक पर था, यहोवा वहां पर बैठा था। लिखा आगे, जब यीशु तक आया तो वो घुटनों के बल गिर पड़ा और उसने कहा, बाप, मैंने वो काम मुकम्मल कर दिया है जो तूने मुझे करने को दिया था। मैंने गुनाह का कर्ज अदा कर दिया। मेरे पास मौत जहन्नम दोनों की चाबियां हैं और आपका दुश्मन शिकस्त खा चुका है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार किया था। ये एक मुकम्मल कंप्लीट काम जो हो गया, ठीक है। आलमरवा की चाबियां किसके पास थी? यीशु मसीह के पास। मौत की चाबियां किसके पास थी? मौत और आलमरवा की कुंजियां मेरे पास, यीशु मसीह के पास। तो आसमान की बादशाही की कुंजियां यीशु मसीह के पास है। ये पतरस के पास थी, ये पतरस के पास। देखे जब यीशु ने कहा लोग मुझे क्या कहते हैं, पतरस ने बता दिया तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो वहां यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुझे आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। तो वो खुदा कभी गलत नहीं कहता। जब ईद पेंटिकोस्त के दिन उसने कुंजी लगाई तो 3000 के करीब आसमान की बादशाही की कुंजियां पतरस के पास और बहुत आलमरवा की कुंजियां यीशु मसीह के पास, ठीक है। अब ये है एक वो अजीम फातेह। बहुत सारे फातेह थे जिन्हें फतह की, जिन्होंने मेरे कुल्लों पर को फतह किया और शेरों को फतह किया, आपको फतह किया, लेकिन मौत को फतह ना कर सके। लेकिन अपने अपने दौर के अंदर ये कलाम के ताबे रहे, लेकिन मौत का सामना नहीं कर सके। लेकिन एक फिर आया जिसने मौत गुनाह पर फतह पाई और इन सब को मौत के चुंगों से छुड़ाकर वो ऊपर लेकर चला गया। जहां मैं हूँगा वहां तो जब वो आने बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया। अब इस तरह जो पहली आमद में हुआ अब दूसरी आमद में उसी तरह होगा। समझा लिया आपको? इसी तरह होगा। अब उस वक्त भी वो जो फिरदौस में थे, जो नबी ने बात बताई, आज के फिरदौस कौन है? आज फिरदौस आप हैं और जिनके पास इब्राहिम है, जिनके पास बिन ब्रैनम है, जिनके पास नबी है, जिसने द्वारा खुदा और खुदा आपके बीच में आ गया है और आपके साथ उसका वादा है, ठीक है। अब वो आपको लेने के लिए आने वाला है, ठीक है। जाएंगे वही, ठीक है, जो उसके मुंतज़िर है, ठीक है। उस वक्त भी जमीन के नीचे वो सब्र से उसका इंतजार कर रहे थे। आज की दुनिया में ऐसे लोग हैं जो उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आए। जब वो आएगा अब उसको नीचे नहीं जाना पड़ेगा, अब वो निशिका फूंका जाएगा और पहले तो वो जो उसी में मुए जी उठेंगे, फिर जो बाकी होंगे उनके साथ खुदा उनका क्या करेंगे? इस्तकबाल करेंगे। यीशु ने कहा तुम्हारी कमरें बंदी रहे, तुम्हारे चिराग जलते रहे, तुम उस नौकर की मान बनो जो अपने आका की राह देखता है। जैसे वो आए मैं फौरन दरवाजा खोल दूं। तो हम नहीं जानते कि वो कब आए, लेकिन हमें हर वक्त तैयार रहने की। और यीशु ने कहा जब तुम इस तरह के राह देखो आप इंसान ऊपर उठाओ क्योंकि तुम्हारी मखलसी नजदीक है। अब मखलसी करीब है, वो आने वाला है और देखे अब फिर रहते होने वाला है, ठीक है। जैसा पहले हुआ वैसे अब होगा। आप देखें हनूक नहीं मरा, एलिया नहीं मरा, आप भी ऐसे ही होगा। कुछ है जो नहीं मरेंगे, लेकिन कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा ये सिर्फ खुदा ही जानता है। लेकिन जिनके लिए उसका मंसूबा है ना कि वो मुर्दों में से जी उठे उनको मरना पड़ेगा और उनको खुदा मुर्दों में से जलाएगा। लेकिन जिनके लिए मंसूबा है वो जिंदा तब्दील हो तो फिर बेशक रैप्चर के टाइम भी जितने चाहे उनको हार्ट अटैक हो वो मर नहीं सकते, क्योंकि मंसूबा क्या है? जिंदे ही तब्दील हो। अब खुदा फिर जल्द आने वाला है, वो अजीम फातेह जिसने मौत बिना कब्र पर फतह पाई है। अब वो फिर आने वाला है ताकि उन लोगों को वो लेकर चला जाए जो उसका इंतजार कर रहे हैं। आप जरूर है वो जल्द है। आप हालात को जानते हैं, वाक़यात को जानते हैं, दिन दिन किस तरह उसकी आमद करीब से करीब तक होती चली जा रही है। वो तो आने वाला है, तो क्या हम जाने के लिए तैयार हैं? अपनी जिंदगियों पर गौर करें, जाके अपनी जिंदगियों के अंदर क्या रैप्चर वाला म्यार मेरा है या नहीं है। यीशु ने कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो आसमान की बादशाह को देख भी नहीं सकता। नबी ने इस बात को खोला। एक है म्यादिल
हिस्से की किताब में है, मैं तुम्हें नया दिल दूंगा, नया जहन दूंगा। तो नया दिल या नया जहन ये नई पैदाइश नहीं है। नए दिल में क्या होता है? नया दिल जो है ये शिक्षा छोड़ देता है, गाली बकरा छोड़ देता है, लड़ाइयाँ झगड़े छोड़ देता है, बदतमीजी छोड़ देता है। ये नया दिल है। इसमें पुरानी चीजें जाती रहती हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि नई में पुरानी मशकों में नहीं डाली जाती। इसके लिए नया दिल का होना जरूरी है। जब दिल नया होगा तो फिर रूल कुदस उसके अंदर आएगा, तब आकर नया जन्म है। पुराने नए दिल के अंदर सिर्फ एक चीजों से अलग होना है। हाँ, मैंने ड्रामे छोड़ दिए, मैंने फिल्में छोड़ दी, और मैंने सेवरात छोड़ दिए, मैंने बाल काटना छोड़ दिए, मैं गान छोड़ दिया। ये समझे भी नया दिल है, नया दिल है। अभी रूल कुदस का जीवन हमारे अंदर नहीं आया, क्योंकि ये अब मैं मशक नहीं हुई है, अभी दिल नया हुआ है। अब इसमें मैं आनी है, रूल कुदस आना है। जब वो आएगा तब जाकर रैप्चर के लिए आप तैयार होंगे। तब वो आएगा, लेकर चला जाएगा फिर को जिन्होंने आज जन्म पाया है। और अपनी सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, देखें क्या मैं इस हालत में हूँ या नहीं हूँ। पुराने ऐतरामा के ईमानदार वो उसका इंतजार कर रहे थे, वो कब आए। जो उसके मुंतजर थे वो उनको लेकर ऊपर चला गया। अब वक्त है वो नए ऐतरामा के ईमानदारों को भी लेने के लिए आए। वो आने वाला है, अपने आप को तैयार करें। खुदा आपको बरकत दे।